So Ishida, last class we have completed stoichiometry. Not completed. Stoichiometry का कुछ part we have completed, but still there are remaining portion like limiting reagent and excess reagent. The Yes, sir. stoichiometry involving limiting reagent and excess reagent, and that is where we are going to start with. Okay. Okay, sir. The first question Yes, sir. comes: limiting reagent क्या है and what is excess reagent? Any idea? Hmm. What is limiting reagent No, and what sir. is excess reagent? ठीक है. So first of all, this case will arise when there will be quantitative information given for more than one reactant. अगर एक से ज्यादा reactant के लिए quantity given है तो फिर that will be the case of limiting reagent and excess reagent. मैंने बता दिया कब condition कि when you have to apply this concept. Now the question comes, what Yes, is sir. limiting reagent and what is excess reagent? Limiting Excess reagent क्या है? reagent. When quantitative information of two or more reactants is given, the reactant that is completely consumed fast, ठीक है, and thereby limits the amount of product formed is called the limiting reagent. मतलब अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो जो पहले खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा पहले, दैट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग Okay, रिएजेंट. sir. तो अगर एक रिएजेंट खत्म हो जाता है तो रिएक्शन भी वहां पे खत्म हो जाएगा. कैन आई से दैट? Yes, sir. तो वो रिएक्शन Yes, खत्म sir. होने के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट भी लिमिट हो जाएगा. रिएक्शन खत्म होगा तो प्रोडक्ट जितना मिलेगा वहां पे रुक जाएगा. तो कहना है इसे जो Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग, एंड आल्सो व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट. तो देयर आर अदर रिएजेंट्स व्हिच आर स्टिल लेफ्ट ओवर, जो कंज्यूम नहीं हुआ है Yes, sir. कंप्लीटली. देयर विल बी Yes, other reagents will be still remaining after the completion of reaction. Those will be called excess reagent. समझ में आया? yes, sir. तो लिमिटिंग रिएजेंट completely consumed हो जाता है, which determines the maximum amount of product. All stoichiometry calculation done from limiting. That is why limiting reagent is important. You have to figure out the limiting reagent क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना excess reagent लेफ्ट ओवर रह जाएगा और हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑप्टेन, राइट. एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? जो पार्शियली कंज्यूम्ड होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होने के साथ साथ एक्सेस रिएजेंट भी रिएक्ट करना बंद कर देता है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Yes, sir. चलो, तो when you have such cases where more than quantitative information of two reactants are given, तो पहला काम क्या है? You have to identify the limiting reagent. Of course you are using stoichiometry, मतलब balanced chemical equation तो use करना ही पड़ेगा. So you should have a balanced Yes, sir. chemical equation and then you have to figure out the limiting reagent. कैसे करना है? देखो, तुम्हें they will give you the moles of the reactant. मतलब जो reactants है उसका moles दिया रहेगा. That moles are the initial moles. Start reaction starting से पहले कितना moles of reactants are there, वो that will be given to you as a data. Now in terms Okay, of sir. mass हो सकता है, in terms of volume हो सकता है, in terms of molecules कुछ भी हो सकता है, but you have to convert them into moles because stoichiometry deals with the moles, right? वो डायरेक्ट रिलेशन मोल्स Yes, के sir. बीच देता है. तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको पहले मोल्स पे ट्रांसफर करना है, राइट. एंड देन तुम्हें वो रिएक्टेंट्स का मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो चेक करना है. यू हैव टू check the moles by coefficient ratio for all these reactants. जिस reactant के लिए ये ratio smallest ratio होगा that should be the limiting reagent, ठीक है, and other will be the excess. Is it clear? सर स्मॉलेस्ट रेशियो वाला समझ में नहीं आया, एक बार समझा दीजिए. तुम्हें हर एक reactant का जो moles given है by coefficient करना है, उसका moles by उसका coefficient. coefficient तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल जाएगा, ठीक है. तो यस ये सर. मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो करने के बाद जिस रिएक्टेंट का मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो स्मॉलेस्ट होगा दैट शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट. दैट इज द शॉर्टकट ट्रिक टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. इज इट क्लियर? ओके सर. And once you identify the limiting reagent, you can calculate the amount of product formed or the amount of excess reagent left. ठीक है. तो सारे कैलकुलेशंस यस के सर. लिए लिमिटिंग रिएजेंट को फिगर आउट करना जरूरी है. आई होप इट इज क्लियर. So let us
Yes, sir. डू एन एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम करते। तो प्रॉब्लम क्या है, देर आर 5 moles ऑफ SO2 एंड 5 moles ऑफ O2। आई कैन सी दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट, Yes, sir. are reacting with each other to form SO3. Determine limiting reagent, mass of excess reagent left and amount of SO3 produced. Correct? तो Yes, sir. पहले क्या चाहिए? What I need first? I need a balanced equation. So can you write the balanced equation? SO2 plus O2 gives SO3, right? Yes, तो sir. इसको बैलेंस करो, क्या मिल रहा है? What are the coefficients coming? If you balance it, it will be 2SO2 plus O2 gives 2SO3, right? This is our balanced chemical equation, which is necessary. ये तो चाहिए ही होगा, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करना है, इसका 5 moles है, इसका भी 5 moles लिया हुआ है, राइट। तो मुझे फिगर आउट क्या करना है, इन दोनों में से which one is limiting reagent, राइट। Yes, sir. ट्रिक क्या है, कैसे करना है हमें, हमें इन दोनों का मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो चेक करना है। तो SO2 का मोल्स 5 है, उसका कोएफिशिएंट है 2, एंड ऑक्सीजन का 5/1, राइट। Yes, sir. तो विच रेशियो इज स्मॉलर? Sir, O2 का ratio smaller है 1:5. 5:1. 5:1 is smaller than 5:2. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. What is this? 5/2 is 2.5 and 5/1 is 5, isn't it? So Yes, which sir. ratio is smaller? Sir, 2.5. Right? डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे ज्यादा होगा दैट शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? SO2, SO2. दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो Yes, sir. वंस आई डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट, तो अगर SO2 5 moles खत्म हो रहा है तो उसके साथ O2 कितना रिएक्ट करेगा, लेट्स से X moles O2 इज कंज्यूम्ड, राइट, एज वेल। Yes, sir. तो कितना रिमेनिंग रहेगा, इट शुड बी moles of O2 left is equal to 5 minus consumed moles Minus of X. O2। तो X कैसे मिलेगा, डू यू रिमेंबर वी हैव डन कि हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूम्ड मोल्स, कैसे मिलना चाहिए, लेट्स से, और इसका Y moles बन रहा है, राइट, इसका Y moles बन रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन यू विल बी यूजिंग, तो ये लिमिटिंग का 5/A इज इक्वल टू इसका कितना कंज्यूम हो रहा है, x/1, अच्छा सॉरी, यहाँ X पे by 1. 5/2 है। SO2 का लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल्स बाय कोएफिशिएंट दैट शुड बी इज इक्वल टू द कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ O2 बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इसका मोल्स जो बन रहा है Y बाय इसका कोएफिशिएंट, राइट। Yes, sir. ये स्टोइचियोमेट्री का बेसिक रूल है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद द फॉर्म्ड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर। Yes, sir. Sir, Y तो by ये 2 कैसे आया? तो ये SO3 का कोएफिशिएंट क्या है, Okay, sir. ये तो हम लास्ट क्लास में किए थे ना। तो यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2.5, राइट, Yes, sir. एंड Yes, y sir. कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू 5 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे y अगर 5 मोल से एंड इसका अगर मास निकालना है, तो मोल से मास कैसे निकाला जाता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय मोलर मास। Yes, sir. तो SO3 का मोलर मास क्या है, इफ यू डू द कैलकुलेशन 80 ग्राम मिलेगा, तो ये कितना होगा, सो मास इज इक्वल टू 5 into 80 ग्राम, दैट इज 400 ग्राम, 400 right? gram. And what is the mass of excess reagent left? तो ये moles of O2 left कितना है, 2.5 moles। Yes, sir. तो mass of O2 क्या होगा, you have to multiply it by the molar mass, yes or no? Yes, sir. So 2.5 into 16. फिर से गलती, O2 मतलब 32 होता है ना, So 16 into 2. समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. you are still doing the rookie mistakes, right? मतलब ये 5/1 और 5/2 में कौन कम है कौन ज्यादा है, you are struggling with that। सर हमको लगा वो रेशियो में है 5/5:2 करके। हाँ तो रेशियो ही तो है, 5/1 इज अ रेशियो, 5/2 इज अ रेशियो। एनीवे चलो,
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. What is the question? Take balanced chemical equation is already given to you. तुम्हें K2Cr2O7 का mass is given, which is 58.8 gram at the beginning, and HCl is Yes. 7.3 gram. तो दोनों का quantity is given. So can I say this will be the case of limiting reagent and excess reagent? Yes, sir. तो पहले क्या करना है? मास दिया हुआ है, पहले क्या करना है? सर मास दिए सर, पहले मोलर मास निकालना होगा. हाँ, तो फिर मोलर मास निकाल के सर मोलर मास निकालने के बाद सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, एंड यू नो दैट स्टोइचियोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तुम्हें मोल्स का रिलेशन पता चलता है. तो यहाँ पे मास इज गिवन, तो मोल्स पे ट्रांसफर करना है ना. यस सर. तो यहाँ पे मोलर मास क्या है? द मोलर मास इज 294 ग्राम. मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, और HCl का तो यू कैन कैलकुलेट 36.5 ग्राम मिलेगा. HCl का कितना यस आएगा? सर. मोलर मास इज 36.5 ग्राम. तो मास से मोल्स कैसे निकाला जाता है? 58.8 ग्राम इज द मास ऑफ K2Cr2O7. मोल्स कैसे निकालोगे? सर मोलर मास से डिवाइड देके. Right. So if I do that, it will be coming as 0.2 moles. और HCl के लिए भी this will be coming as 0.2 moles. दोनों का मोल्स सेम है. अब कौन लिमिटिंग यस और सर. कौन एक्सेस कैसे डिसाइड करना है? हाउ टू डिसाइड विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट? क्या करना है उसके लिए? व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज सर दैट रेशियो. दोनों का मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो निकालना है. तो इसका मोल्स इज 0.2, इसका कोएफिशिएंट इज 1, राइट. तो यहाँ पे 0.2 by 1, in this case 0.2 by 14. Now tell me which one is the limiting reagent? सर 0.2/14 जिसका है. Right. तो इसका मतलब HCl is the limiting reagent here. This is the limiting reagent, right? यस सर. अब निकालना क्या है? तुम्हें Cl2 का वॉल्यूम निकालना है STP पे, राइट. तो यस सर. एंड पे खत्म कौन हो रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट HCl खत्म हो रहा है, ठीक है. एंड लेट्स से x मोल्स ऑफ Cl2 इज फॉर्म. तो इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालोगी? क्या करना है? मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंज्यूम्ड मोल्स है दैट इज 0.2 बाय उसका कोएफिशिएंट इज 14 should be equal to moles of Cl2 formed by उसका कोएफिशिएंट 3. यस सर. You get it or not? यस सर. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा. तो x क्या आया? x यस is सर. equal to 3 into 0.2 by 14. बाई तो अगर 14. मोल्स मिल गया तो STP पे वॉल्यूम निकाल पाओगी. यस सर. 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 STP पे कैसे करना पड़ेगा? 3 into 0.2 by 14 into 22.4 लीटर. आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. समझ में आ रहा है हाउ टू यूज लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, व्हाई फिगरिंग आउट लिमिटिंग रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इक्वल मास ऑफ जिंक एंड I2 रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म ZnI2. तो लेट अस डू वन थिंग. पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. तो जिंक प्लस I2 gives ZnI2. Now you can see this is already balanced, right? यस सर. ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब दोनों का सेम मास, इक्वल मास लिया गया है, तो दोनों का x ग्राम और w ग्राम पकड़ लेते हैं. स्टार्टिंग पे दोनों का मास सेम है ना. अच्छा चलो, यहाँ पे Yes, sir. जिंक का एटॉमिक मास मैं दे देता हूँ. लेट्स से इट इज 65 एंड आयोडीन का एटॉमिक मास इज 127. सो दैट विल हेल्प यू टू द कैलकुलेशन. ठीक है. तो मुझे ये मास से पहले क्या निकालना है? आई कैनॉट डायरेक्टली find the relation between the masses, but I can find the relation between the moles using the stoichiometry, right? Yes, sir. तो मुझे मास से पहले कहाँ पे ट्रांसफर करना है? सर मास से मोल्स पे ट्रांसफर करना है. तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ जिंक? दैट इज 65 ग्राम. एंड I2 के लिए क्या है? दैट शुड बी 127 into 2 ग्राम. ये मोलर मास है. Yes, sir. तो यहाँ पे मोल्स कितना Yes, sir. मिलेगा? W by 65 मोल्स. यहाँ पे मोल्स कितना मिलेगा? W by 254 मोल्स. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir.
इट इज क्लियर। तो मुझे अब क्या करना है, दोनों का क्वांटिटी से मुझे पहले क्या फिगर आउट करना है, व्हिच वन इज द, क्या फिगर आउट करना है जल्दी बताओ। सर विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मुझे दोनों का मोल्स बाई कोएफिशिएंट निकालना है। यस यस सर। और नो? तो यस सर। अब ये तो इजी है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, मोल्स किसका ज्यादा है यहाँ पे, जिंक और I2। सर I2। I2 का मोल्स ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ये रेशियो कम हो जाएगा ना। सर जिंक का। जिंक का मोल्स ज्यादा है, तो यू आर डूइंग द रुकी मिस्टेक्स। तो यहाँ पे I2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, कैन आई से दैट, यस सर। मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो फिर अगर I2 खत्म हो रहा है तो जिंक, लेट से जिंक जो कंज्यूम हो रहा है दैट इज माइनस एक्स मोल्स, एक्स मोल्स ऑफ जिंक इज कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो एक्स कैसे निकालोगे, तो मुझे I2 का मोल्स बाई कोएफिशिएंट which is W by 254, or I can write moles of I2 by coefficient is 1 should be equal to x by 1। तो जितना मोल्स I2 कंज्यूम्ड होगा उतना ही x का वैल्यू होगा, क्लियर और नॉट। यस सर। तो x क्या मिलेगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू W by 254, that should be the remaining moles of zinc, W by 65 minus W of 254, यही है यस ना। सर। So what you need to यस सर। find out is calculate fraction of excess reagent left. What does that mean? You have to find, that means what is the excess reagent left, that is this is the moles of excess reagent left। अब फ्रैक्शन पूछा है तो इनिशियल मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या था, W by 65। तो इनिशियल मोल्स के रेस्पेक्ट पे कितना फ्रैक्शन है, सो कैन आई से दिस शुड बी नथिंग बट दिस शुड बी द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, यस सर। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आई विल लीव इट टू दैट यस सर। कैलकुलेशन, आई विल लीव इट फॉर यू। So that is how you solve the problems of stoichiometry applying limiting reagent and excess reagent. I hope the concept is clear. यस सर। Okay, let us go ahead. तो next क्या है, next is sequential और multi-step reaction। तो sequential reactions क्या होता है, so you can see what is this, these are a series of reactions, where the product of one step becomes a reactant of the next step, they form a reaction chain, each step has its own stoichiometry। So look at this, so this is a 4-step reaction, A to B, B to C, C to D and D to E। So if I add these 4 steps, you will see BB will be cancelled out, CC will be cancelled out and DD will be cancelled DD out। will be cancelled out. So the net reaction is what, A to E, A to E. but the whole reaction takes place in these 4 steps, ठीक है। तो sequential reaction मतलब क्या है, sequential reaction means there will be a series of reaction in sequence and हर 2 reaction के बीच कोई ना कोई common substance होगा, ठीक है। जो पहला reaction का जो product वो दूसरा reaction का reactant बन जाएगा and for every step there will be a given stoichiometry। Is it clear? Yes sir. ठीक है, चलो तो कुछ sequential reaction वाला problem solve करते हैं। You can see this is a sequential reaction, 3 step में ये reaction हो रहा है। You can see in the between the first and second reaction, first reaction में C is the product जो second reaction पे as a reactant काम कर रहा है, yes Yes or sir. no? और दूसरा reaction पे F is the product जो तीसरा reaction पे as a reactant काम कर रहा है। So we have to follow the common substance between two reaction, उसको follow करना है। If you have to calculate the quantitative amounts तो तुम्हें ये common substance को follow करके जाना है, right? सर सब्सटेंस का वैल्यू तो अलग अलग हो सकता है ना? हाँ तो देखते हैं ना, तो जैसे कि व्हाट इज, तुम्हें पहले स्टेप में जो रिएक्टेंट्स है उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा एंड लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट्स है उसका इंफॉर्मेशन निकालना होगा, ठीक है। ओके सर।
Let us say, what is the question here? Calculate maximum number of moles of H which can be produced by 5 moles of A and 10 moles of B. तो ये मेरा पहला स्टेप है. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? A is taken 5 moles, B is taken 10 moles. तो we have the information of two reactants. तो क्या करना है पहले? अगर दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन है तो पहले क्या करना है? तो दोनों का मोल्स का दिया हुआ है, जैसे थर्ड का भी मोल निकालना होगा. नहीं, अगर दोनों का क्वांटिटेटिव इन दो रिएक्टेंट का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फिगर आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. Yes, sir. अभी तो किए हम लोगों ने. तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करोगे? दोनों का मोल्स बाय कोएफिशिएंट चेक करना है, राइट? Yes, sir. तो बताओ कौन सा रेशियो स्मॉलर रेशियो है, 5/2 या 10/3? ठीक से बताना. Yes, sir. Which ratio is smaller, 5/2 or 10/3? Sir, 5/2. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. तो इस रिएक्शन के एंड पे ये तो खत्म हो जाएगा. मुझे किसको फॉलो करना है? C को फॉलो करना है. आई हैव टू फॉलो द कॉमन सब्सटेंस टू कम टू द एंड स्टेप, राइट? Yes, sir. तुम्हें पहला स्टेप का इंफॉर्मेशन यूज करके लास्ट स्टेप तक आना पड़ेगा. तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो द ट्रेल बाय फॉलोइंग द कॉमन सब्सटेंस बिटवीन टू स्टेप्स, राइट? तो पहला दो स्टेप्स के बीच कॉमन सब्सटेंस क्या है? C. Yes, sir. तो उसको फॉलो करो. तो कितना मिलेगा C यहाँ पे? तो लेट्स से x मोल C मिल रहा है. तो x कितना होगा? तो आई कैन इजीली, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट A है तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल्स बाय कोएफिशिएंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू x by 5. यस और नो? X/5. Yes, तो sir. ये x क्या बना? तो C कितना बना मेरा? 25/2 मोल्स. ठीक है. अब देखो दूसरा Yes, स्टेप sir. में ये पूरा C यहाँ पे जो बना है 25/2 moles that will participate in the second step with this तो coefficients. सर 4, तो सर जो C का वैल्यू है तो सर 4 into 25/2 हो नहीं, जाएगा. 4 into क्या होगा? वो तो stoichiometric coefficient है. That gives you the ratio in which C will participate in the second step. But C का quantity क्या मिला मुझे? 25/2 moles. यहाँ पे जो बन रहा है that will participate in the second step, right? तो मेरे पास C कितना Okay, है? sir. 25/2 moles. Yes or no? Yes, sir. Now अगर मुझे तीसरा स्टेप तक जाना है तो which substance I have to follow? E और F किसको फॉलो करना है? Sir, F. F को फॉलो करना है. दैट इज अ कॉमन सब्सटेंस. तो लेट्स से यहाँ पे y मोल्स ऑफ A बन रहा है, F बन रहा है. तो हाउ टू फाइंड F का मोल्स कैसे निकालोगे? तो C का कितना मोल्स कंज्यूम्ड हो रहा है? 25/2 बाई उसका कोएफिशिएंट इज 4 शुड बी इक्वल टू y by 6. यस और नो? Yes, sir. तो सर इसमें जो 7D है और 9E है, मैं उसका तो कोई यूज नहीं है. नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे तो उसका इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. मुझे जिसका इंफॉर्मेशन चाहिए उसका ही निकालना है. ओके सर. तो ये y क्या आ रहा है? 75/4. ठीक है. एंड ये Yes, F जो मिला 75/4 moles that is going into the third step for participation. ठीक है. तो F मेरे पास कितना है यहाँ पे? 75/4 moles. 75/4. निकालना क्या है? H का मोल्स निकालना है, राइट? तो H का मोल्स Z पकड़ लेते, ये मुझे फिगर आउट करना है. सो हाउ कैन आई डू दैट? क्या करना तो है? सर तो F 75/4/3 is equals to Z/8. 8. तो इसको कर लो. यू कैन सी यहाँ पे Z आएगा 50 मोल्स. अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 50 मोल्स मिलने वाला है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे बिल्ड अप कर रहे हैं. ठीक है Yes, ना? sir. तो देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन. कैन यू डू दिस? कैलकुलेट मास ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन क्या होता है? दिस इज अ पॉलीमर, राइट? जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर होता है. मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका रिपीटेशन होता है पॉलीमर पे n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट मास ऑफ पॉलीथीन व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. तो पहला स्टेप में इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का.
ठीक है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो मुझे मास पे दिया हुआ है, एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो दैट इज नॉट द केस ऑफ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, राइट। यस सर। तो ये 1000 ग्राम से पहले क्या करना है? सर मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मोलर मास कैल्शियम कार्बाइड का क्या है? दैट इज 40 प्लस दिस इज 64 ग्राम। तो मोल्स निकालो, मिलेगा? यस सर। यस और नो? अब पहला दो यस ये 1 2 एंड 3 स्टेप्स है, तो ये पहला स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच व्हाट इज द कॉमन सब्सटेंस? सर C2H2। राइट। तो कैन आई से कि ये कैल्शियम कार्बाइड एंड C2H2 1:1 मोल पे रेशियो पे, तो जितना मोल्स कैल्शियम कार्बाइड उतना ही बनेगा C2H2। यस सर। एंड दूसरे एंड थर्ड स्टेप के बीच व्हाट इज द कॉमन सब्सटेंस? सर C2H4। C2H4 इज द कॉमन सब्सटेंस। तो मुझे इसको फॉलो करना है, एंड यू कैन सी दैट C2H2 एंड C2H4 इज आल्सो इन 1:1 रेशियो। तो कैन आई से ये जो थर्ड स्टेप में, इसमें C2H4 कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? सेम एज 1000/64, यस सर। राइट। तो यहाँ पे 1000/64, ओके। यू हैव टू फाइंड कि इसका मास क्या है पॉलीथीन का। तो लेट्स से यहाँ पे x मोल्स बन रहा है, तो x मोल्स कैसे निकाले? यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ C2H4 कैसे निकाले? जल्दी बताओ। तो C2H4 का मोल्स क्या है? 1000/64 बाई कोएफिशिएंट 64। क्या है? n। इसका N। कोएफिशिएंट क्या है? n। दैट शुड बी इज इक्वल टू x/1। यस यस सर। और नो? तो x कितना यस मिला? सर। So this is what? 1000 n/64। यस सर। तो मास क्या होगा? मोल से मास कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए मोलर मास चाहिए इसका, राइट। यस सर। तो मोलर मास इसका कैलकुलेट करो। कार्बन का 12 इंटू 2 24, 28 n आ रहा है। तो मास क्या होगा? 1000 अच्छा, into शायद मैंने यहाँ पे 28। एक गलती किया है। द पॉइंट इज ये n यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, n शुड कम एट डिनोमिनेटर। n यहाँ यस पे सर 64 N होगा। राइट। तो इट शुड बी moles into molar mass 28, that will give you the mass. Is it clear? यस सर। Just give me 1 minute. Okay, so far do you have any doubt? नो सर। Okay, so let us continue. The next topic क्या है? Principle of atomic conservation. तो basically this is based on what? This is based on conservation of mass. देखो, when you balance a equation, तुम क्या करते हो? दोनों साइड पे, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे, किसी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम करते हो, यस है सर। ना। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स सेम होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इस पे ही बेस है, ठीक है। तुम्हें क्या पता है कि व्हेन ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है, उसका सारे एटम्स प्रोडक्ट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो लिमिटिंग यस सर। रिएजेंट तो खत्म हो गया, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका सारे एटम्स प्रोडक्ट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। यस सर। तो कैन आई से कि ये लिमिटिंग रिएजेंट में यूजुअली दे विल गिव यू द हिंट किसमें तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अप्लाई करना है। जिसमें पीओएसी अप्लाई करना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पे सेम होता है, राइट।
Okay, sir. The element in which you are supposed to supply POAC, उसका हिंट क्वेश्चंस में दिया रहेगा। एंड फिर क्या करना है, जिसमें तुम POAC अप्लाई करोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पे सेम करना है। यू हैव टू Same फाइंड एन होगा। इक्वेशन and solve the parameter which has been asked in the question, right? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे what is the principal number of moles of atom of said element, that means जो hints दिया रहेगा at reactant to be more specific जो limiting reagent होता है should be equal to the number of moles of same atom in the product। ये समझ में आया? For example, let's say for this reaction H2 plus O2 gives H2O, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन के अंदर जितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, let's say this is number of moles of hydrogen atom present in H2 molecule, that should be equal to number of moles of hydrogen atom present in water molecule। is it clear? Yes, तो sir. इस यहाँ से जितना भी हाइड्रोजन है वो सारे वाटर में ट्रांसफर हो गया, तो मुझे ये इक्वेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम in H2 should be same as number of moles of hydrogen atom in water। is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालते हो? मोल्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हो? इन ए मॉलिक्यूल। इसको कैसे निकाला जाता है? that should be is equal to the moles of that molecule into atomicity of that element in that molecule। Element. ठीक है, तो जैसे कि let's say कि if we have 2 moles of hydrogen atom, तो इसमें sorry, if we have 2 moles of water, तो उसमें number of moles of hydrogen atom कितना होगा? अगर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, जल्दी बताओ। Sir, क्या करना है sir, तुम्हें? 2 into 2 atomicity into of element. हाइड्रोजन, तो क्या Yes, हुआ? sir. तो 2 into 2 दैट गिव्स यू 4 मोल्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन टू अप्लाई पीओएसी। पीओएसी कब अप्लाई करना है? द फर्स्ट पॉइंट, जब तुम्हारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यू डोंट हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन और इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि यू डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन टू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सारे रिएक्टेंट्स नहीं है तुम्हारे पास, सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं है, देन यू कैन नॉट राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ऐसे सिचुएशन पे पीओएसी कैन बी योर प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, जब कोई कॉम्प्लेक्स Okay, और sir. मल्टी प्रोडक्ट रिएक्शंस होता है जिसमें बैलेंस करना मुश्किल है, उसमें भी तुम पीओएसी अप्लाई कर सकते हो फॉर क्विक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्विक Yes, वन sir. स्टेप कैलकुलेशन करना है विदाउट स्टोइशियोमेट्री, पीओएसी अप्लाई करने के लिए यू डोंट नीड स्टोइशियोमेट्री और बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हेन यू कैन नॉट यूज स्टोइशियोमेट्री, पीओएसी कैन बी द गेम चेंजर, राइट? Yes, sir. जैसे कि इसमें देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 आर फॉर्म्ड व्हेन 2 मोल ऑफ अमोनिया आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो आई विल नॉट राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन भी नहीं है, बट व्हाट वी नो कि NH3 कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, राइट, और कंप्लीटली खत्म हो गया एज पर द क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. तो NH3 एंड NO2 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? Sir, nitrogen. नाइट्रोजन। सो कैन आई से, तो NH3 के अंदर जितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा दैट विल बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड in the NO2। Yes, sir. So can I write that moles of nitrogen atom in, तो हम we are applying POC on nitrogen, ठीक है, and moles of nitrogen atom same कहाँ पे होगा? अमोनिया पे and NO2 पे, राइट? देखो समझ Yes, में sir. आया कि नहीं? तो फिर we have 2 moles of ammonia, तो 2 moles ammonia में नाइट्रोजन कितना मोल्स होगा? You have to multiply 2 with the atomicity of nitrogen, which is 1. Yes or no? Yes, sir. 2. Yes, sir. And let's say x moles of NO2 is formed. तो x moles of NO2 में नाइट्रोजन कितना मोल्स होगा? इसमें भी नाइट्रोजन का एटोमिसिटी 1 है, तो इट शुड बी x into 1। Yes or no?
तो फिर एक कितना बनेगा? इसका मतलब क्या हुआ? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये वाला, what does it say? It says that when P4 is oxidized to P2O5, how many grams of P2O5 are formed from 62 ग्राम of P4? तो इसमें कौन खत्म हो रहा है? कंप्लीटली खत्म कौन हो रहा है? सर P4। P4। तो P4 and P2O5 में which element is common? सर P। Phosphorus। तो कहना इसे POAC on phosphorus। यस सर। तो इसका मतलब अब ये फॉस्फोरस P4 से कहां पे जा रहा है? P2O5 पे। तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एट P4 should be equal to moles of phosphorus atom at P2O5. Do you agree यस or सर। not? You agree? यस सर। चलो तो बताओ। तो what do we know? We have 62 ग्राम of P4। तो हम मोल्स चाहिए मुझे। 62 ग्राम P4 मतलब कितना मोल्स होगा? फॉस्फोरस का एटॉमिक मास इज गिवन 31। तो मास से मोल्स निकालना पड़ेगा। ये यस 62 सर। ग्राम है, तो 62 ग्राम मतलब मोल्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यू नीड द मोलर मास ऑफ P4। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ P4 हियर? व्हाट इज द मोलर मास सर ऑफ थर्टी P4? वन 31 × 4। राइट। तो यहाँ पे 124 ग्राम। तो यहाँ पे P4 का मोल्स क्या आएगा? 62/124, दैट इज हाफ मोल, राइट? यस सर। अब तुम बताओ, तो ये हाफ मोल P4 पे व्हाट इज द मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम? इसमें एटोमिसिटी क्या है फॉस्फोरस का? सर 4। 4 है। सो कैन आई डू हाफ इंटू 4? यस सर, 2 आएगा। दैट इज फाइन। अब मुझे क्या निकालना है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ P2O5 विल बी फॉर्म। द P2O5 का मास पहले देखेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे। लेट्स से ये x मोल बन रहा है, तो इसका x मोल्स पे कितना मोल्स फॉस्फोरस एटम है? एटोमिसिटी यहाँ पे क्या है? 2। यस सर। तो कैन आई राइट? तो दिस शुड बी इंटू इक्वल टू टू x इंटू 2। तो यहाँ से तुम्हें मोल्स मिलेगा। व्हाट इज इट कमिंग? x इज इक्वल टू 1 मोल, 1। राइट? तो अगर ये 1 मोल है, इसका मोलर मास इज ऑलरेडी गिवन टू। तो मतलब मास क्या होगा? इट शुड बी इक्वल टू 142 ग्राम। दैट शुड बी योर आंसर। इज इट ग्राम। क्लियर और नॉट? यस सर। समझ में आ रहा है हाउ यू आर डूइंग? यस सर। चलो सही है। अब इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा इजी क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। तो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 इज ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट्स। सो रिएजेंट्स नहीं बताया, दैट मींस यू कैन नॉट राइट एनी ऑफ द इक्वेशन, राइट? यस सर। They have said so as to convert all of its carbon into this complex compound. Calculate weight of the product formed. तो इसमें POAC किसमें अप्लाई करना है? सर कार्बन पे, कि कार्बन में ही कन्वर्ट करना है सबको। तो ये सारे कार्बन इस कंपाउंड से इस कंपाउंड पे आया है, तो आई हैव टू अप्लाई POAC ऑन कार्बन, राइट? यस सर। And we can say that moles of carbon atom in K2CO3 should be equal to moles of carbon in this compound. Let's say this compound is A. तो A में जितना moles of carbon atom होगा, that should be same as moles of carbon atom in K2CO3. Is it clear? यस सर। चलो। Now what is the information you have? K2CO3 का information है 27.6 ग्राम। तो मास से पहले कहाँ पे ट्रांसफर करना है मुझे? सर मोल्स। तो इसका मोलर मास मैं डायरेक्टली दे देता हूँ 138 ग्राम। तो अगर तुम मोल्स निकालोगे K2CO, इसका मोल्स जो आएगा यहाँ से, दैट इज 0.2 मोल्स। ओके, है ना? यस सर। तो फिर यहाँ पे बताओ, तो फिर ये K2CO3 का मोल्स 0.2 मोल्स है, और उसमें कार्बन का एटोमिसिटी क्या है? सर 1। हाँ 1। तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? 0.2 इंटू 1। यस सर। क्या निकालना है मुझे? ये जो कंपाउंड ए है उसका मास निकालना है, तो पहले तो उसका मोल्स निकालना पड़ेगा, राइट? यस सर।
तो लेट अस से इसका मोल से x मोल्स, तो इसका x मोल से व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, ठीक से बताना। सर 6 6 नहीं है, बाहर एक 2 भी है, राइट? तो 6 इंटू 2 सर होना चाहिए ना 12 एटॉमिसिटी, तो 12 होना चाहिए, 12 तो दिस शुड बी इक्वल टू x इंटू 12। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.2 बाई 12 मोल्स। तो ये जो यस कंपाउंड सर है इसका 0.2 बाई 12 मोल्स मिला है। तो इससे इसका मास निकालना है, तो मास कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0 बाई इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब मोलर मास है तुम्हें यस कैलकुलेट सर करना होगा, राइट? तो आई लीव दैट पार्ट, वो तुम्हें एटॉमिक मास विल बी गिवन टू यू, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द मोलर मास एंड यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है? यस सर आई होप समझ में आ रही है ना। यस सर तो चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, दिस इज थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी, so we have a dry green algae 1 gram which absorbs 4.7 into 10 to the power minus 3 moles of CO2 per hour by photosynthesis। अच्छा चलो, तो यहाँ पे photosynthesis हो रहा है and in which it is absorbing what, it is absorbing CO2, right? यस सर What is the rate of CO2 absorption? That is 4.7 4.7 into into 10 to the power minus 3 mole per hour, that is the rate of absorption, right? जो photosynthesis में ये dry green algae कर रहा है। Now what they said, यस if सर fixed carbon atom after photosynthesis is stored in the form of starch, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्राई ग्रीन एल्गी CO2 से, मतलब जो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें सारे कार्बन को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। It is transferring all the carbon from CO2 to starch. It is using CO2 to form starch, right? यस सर तो CO2 के जो सारे कार्बन है वो कहाँ पे जा रहे हैं, स्टार्च पे जा रहे हैं। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, सर C6H10O6 राइट? सो इट इज by the photosynthesis it is storing starch, right? यस सर तो अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो कहना इसे ड्राई ग्रीन एल्गी का वेट विल कीप इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द स्टोरेज। यस सर with यस सर with time the weight of dry green algae will increase with the storage of more starch, right? What is the यस question, सर calculate how much time will it take for the dry green algae to double its own weight। तो इसका weight 2 ग्राम कब होगा, जब it will store 1 ग्राम of starch। इसका खुद का 1 ग्राम है एंड जब वो 1 ग्राम स्टार्च भी स्टोर करेगा तो टोटल वेट विल बिकम 2 ग्राम, डबल ऑफ द इनिशियल वेट, यस सर isn't it? तो जब ये यस सर इसका तो पहले से 1 ग्राम था, when it will store 1 ग्राम of starch, तो फिर टोटल वेट क्या होगा, 2 ग्राम, मतलब वेट विल बिकम प्रोग्राम डबल। एंड दैट इज द क्वेश्चन, दैट कितना टाइम लगेगा to store 1 gram of starch or to double its weight, that is the question। I hope I have made it clear। यस सर चलो सही है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है फिर मुझे। तो यहाँ पे पीओएसी किस पे अप्लाई करना है, सर POAC किस पे अप्लाई करना है, तो पीओएसी मुझे कार्बन पे अप्लाई करना है क्योंकि कार्बन कार्बन CO2 से स्टार्च पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज द इंफॉर्मेशन यू हैव, यस सर इज इट क्लियर और नॉट? यस सर चलो सही है, तो इसका वेट कितना मिला है, 1 ग्राम। तो मास से क्या करना है पहले, सर मास से मोल तो उसके लिए मोलर मास चाहिए। मोलर मास क्या होगा, 6 इंटू 12 72 प्लस 10 इंटू 1 82 प्लस 5 इंटू 16 162, बट बाहर एक एन भी है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द मोलर मास। तो इसका मोल्स क्या होगा, 1 बाई 162 एन moles। Do you agree or not? यस सर Since I am applying POAC over
कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे मोल्स ऑफ कार्बन एटम जितना होगा दैट शुड बी सेम एज स्टार्च। यस Yes, और sir. नो? ठीक है, Yes, sir. तो लेट्स से ये जो टी टाइम इसमें x मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब हुआ है, लेट्स से x मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब हुआ है इन टी टाइम, तो x इंटू Yes, sir. एटोमिसिटी क्या है इसमें 1, दैट शुड बी इज इक्वल टू 1/162n। स्टार्च का मोल से 1/162n, और स्टार्च में कार्बन का एटोमिसिटी क्या है? Sir, 6. Not only 6 into n, right? These are the mistakes you are doing continuously. 6 and ठीक है, तो यहाँ से मुझे CO2 का मोल्स पता चल रहा है। CO2 का मोल्स क्या होगा? यू कैन सी दिस इज 1/27 मोल्स। तो इसका मतलब जिस टाइम में ड्राइगिन एल्गी ने 1 ग्राम ऑफ स्टार्च स्टोर किया है, उस टाइम पे 1/27 मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब हुआ है। इज इट क्लियर? yes, sir. तो व्हाट शुड बी टी? तो टी क्या होना चाहिए फिर? दिस टी शुड बी टोटल जितना मोल्स एब्जॉर्ब हुआ है बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब 1/27, ठीक है, बाई 4.7 इंटू 10⁻³ डिनोमिनेटर पे क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स एब्जॉर्ब पर आवर, और 1/27 इज द टोटल मोल्स एब्जॉर्ब, तो इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द टोटल टाइम इन आवर, एंड Yes, दैट इज sir. व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, the next topic we are moving to percentage purity of sample, right? अब तुम बताओ, अगर मैं पूछूं कि 10 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH एंड 10 ग्राम ऑफ NaOH, इन दोनों में से which one is pure and which one is impure? There is 10 gram sample of NaOH and there is 10 gram of NaOH. So which one is pure? Can you tell me? Sir, 10 gram of NaOH. That is pure. तो ये pure है। तो ये सैंपल क्या है? This is impure. Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ? तो इसके अंदर NaOH का अमाउंट 10 ग्राम से कम होगा because there will be some impurities inside the sample. Yes, sir. अब कितना NaOH है कैसे पता चलेगा? तो एक काम करते हैं, इस सैंपल को HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है? तो ये 10 ग्राम के अंदर जितना प्योर NaOH है वही रिएक्ट करेगा HCl के साथ, जो इम्प्योरिटीज है दैट विल नॉट, Not react. ठीक है ना? तो कैन आई से दैट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल व्हिच रिएक्टेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। जो प्योर Yes, वाला sir. अमाउंट है वही रिएक्ट करेगा ना आउट ऑफ द टोटल सैंपल। Yes, sir. So I can write this equation: percentage purity of sample is equal to mass of the sample which reacted by mass of total sample into 100। Yes, sir. तो एक काम करते, तो इस पे क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl मतलब इम्प्योर है, ठीक है, हैविंग 73% ऑफ प्योरिटी। तो 73% मतलब 200 ग्राम का 73% प्योर HCl है। तो HCl प्योर HCl कितना है फिर? So it should be neutralized by how much of NaOH? That is the question. So we have to write balanced chemical equation. Still we are in stoichiometry, right? So Yes, still we sir. have to write the equation, and I think this is already balanced. अब HCl प्योर HCl कितना है? रिएक्शन में कौन जाएगा? प्योर HCl 200 ग्राम तो नहीं जाएगा। 200 ग्राम का 73% प्योर मतलब प्योर कितना है? 200 का 73, 73 by 100. that is 146 ग्राम is pure 46 HCl। gram. तो अब तुम अब नाउ यू आर इनटू स्टोइचियोमेट्री, क्या करना पड़ेगा? मास दिया हुआ है, पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव द Mole. मास ऑफ प्योर HCl, मोल्स निकालो। उसके लिए यूनिट मोलर मास व्हिच इज 36.5 ग्राम। तो यहाँ से मोल कैलकुलेट करोगे तो 4 मोल्स आएगा, राइट? तो लेट्स Yes, से sir. NaOH रिक्वायर्ड इज x मोल्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, एंड यू कैन यूज दैट फॉर्मूला 4/1 इज इक्वल टू x/1, तो x भी 4 आएगा, Yes, sir. ठीक है? अगर NaOH का मोल्स मिल गया तो यहाँ से तुम मास निकाल सकते हो। मोलर मास 40 है तो दिस मस्ट बी 160 ग्राम। इज इट क्लियर?
Yes, sir. चलो ये वाला कर लोगे ऐसे हुआ, देख लो। कर लोगे। excess HCl is added to an impure sample of 10 ग्राम FeS, तो उसके अंदर प्योर FeS 10 ग्राम से कम होगा, राइट? Yes, sir. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन टू यू। H2S कितना मिला? 2.24 लीटर, ठीक है। तो अगर तुम्हें Yes, sir. H2S का वॉल्यूम पता है STP पे, तो मोल्स निकाल सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, राइट? कैसे निकालोगे? Yes, sir. वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालना है? Hmm. वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकाला जाता है एसटीपी पे? इट इज इजी ना। एक एक सर मोल गैस का वॉल्यूम 224 से डिवाइड देना होगा। 22.4 से डिवाइड करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2.24 by 22.4 लीटर, which is equal to 0.1 मोल्स। तो H2S है 0.1 मोल। तो लेट अस से अगर FeS x मोल्स कंज्यूम होता है तो 0.1 मोल्स H2S मिलता है। एंड देन आई विल यूज द सेम ट्रिक, दोनों का मोल्स बाई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। x by 1 Yes, sir. should be equal to 0.1 by 1, this is equal to 0.1 moles। तो यहाँ से तुम प्योर FeS का मास निकाल सकते हो। Yes, sir. उसके लिए मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास इज 88 ग्राम which is already given to you, so this is nothing but 8.8 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम सैंपल पे 8.8 ग्राम प्योर FeS है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या मिलेगा फिर? Hmm. Sir 8.8 8 by 10 point into 100, that is 100. 88%। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज प्योरिटी हो गया, अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो, लेट्स से वी हैव N2 plus 3H2 gives 2NH3, so let us say that we have taken 5 moles of N2, तो फिर अमोनिया कितना मोल्स मिलना चाहिए? Hmm. अगर 5 मोल्स ऑफ N2 कंज्यूम्ड होता है तो अमोनिया कितना मोल्स मिलना चाहिए? जल्दी बताओ। Sir, your voice is not audible. am I audible now? सर वॉइस क्रैक हो रही है बीच बीच में। तो फिर बताओ, यहाँ पे अगर 5 मोल्स N2 है तो अमोनिया कितना मोल्स मिलना चाहिए? इट शुड बी 10 मोल्स, 1:2 रेशियो पे है। यस यस और नो? तो कहना इसे यस सर। दिस इज द मोल्स व्हिच इज एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्री। यस If सर। there are 5 moles of N2, then we are expecting 10 moles of ammonia from stoichiometry. But अगर यहाँ पे instead of expected moles, let's say 8 moles, let's say that is moles which is actually obtained, 10 moles मिलना चाहिए as per the stoichiometry, but 8 moles मिला, तो इसमें percentage yield क्या होगा? It should be 80%। यस सर। What is the formula of percentage yield? It is moles obtained by moles बाय expected। मोल्स एक्सपेक्टेड इनटू 100। राइट, अगर तुम मोल्स के जगह तुम मास लेके भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सेम कंपाउंड। तो मास ऑब्टेन्ड बाय मास एक्सपेक्टेड इनटू 100, ठीक है। और ये जो एक्सपेक्टेड वाला पार्ट है ना, दैट इज फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। तुम स्टोइचियोमेट्री से जो एक्सपेक्ट करते हो दैट विल कम एट द डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक प्रॉब्लम करते हैं। हियर इट इज गिवन देयर इज 200 ग्राम ऑफ 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट which is heated if the percentage yield of calcium oxide is 80%। तो पहले what I need to do is I need to write the balanced equal। अगर तुम इसको हीट करोगे what you are supposed to get? CaO plus CO2, right? यस सर। चलो, now they have said 200 ग्राम of 90% प्योर, तो 200 ग्राम का 90% प्योर है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है यहाँ पे? कितना है? सर 200 का 90% मतलब क्या सर होता है? 90 बाई 100 इंटू 200।
तो ये 180 ग्राम दैट इज द प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बट यहाँ पे यस सर, मास है, मुझे पहले क्या करना है, मास से कहाँ पे ट्रांसफर करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मोलर मास है 100 ग्राम, तो इसको मोल्स पे कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम एट 1.8 मोल्स, राइट। यस सर। तो ये 1.8 मोल्स प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज द मोल्स ऑफ एक्सपेक्टेड CO2, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सर तुम, सॉरी कुड नॉट हियर यू, यू सेड x राइट, सर, यस सर, एक्स। तो x तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यस सर, 1.8 बाई इसका कोएफिशिएंट 1 है, CO2 का अगर x 1। मोल होता है तो x बाई 1, तो दिस इज ऑल्सो 1.8, यस सर, बट मिला कितना, अच्छा वन परसेंटेज यील्ड पॉइंट बता एट दिया, मोल्स परसेंटेज यील्ड इज 80%, मतलब जो मिलना चाहिए उसका 80% मिला, व्हाट इज द मोल्स ऑब्टेन्ड, दैट मस्ट बी 80% ऑफ 1.8, यस सर, कितना मोल्स, यस और नो, यस सर, यस सर। तो फिर इसका मास कितना होगा, जो मास ऑब्टेन्ड है यू हैव टू मल्टीप्लाई द मोल्स ऑब्टेन्ड बाय मोलर मास ऑफ CaO, so this is 56 ग्राम, ओके। ओके सर। सो क्या मिलेगा 1.8 इंटू 0.8 इंटू 56 ग्राम, इज एनी डाउट, नो सर। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा दिस क्वेश्चन टेक दिस एज होमवर्क, देख लो एक बार, कैन यू रीड इट वंस, यस सर। 16.8 gram MgCO3 on heating gives 75% yield. Calculate volume of carbon dioxide evolved in the reaction is performed at STP. कर लोगे, यू कैन टेक योर Yes, टाइम sir. एट होम, हो जाएगा राइट, Yes, sir. Yes, sir. let us do this one, 68, what does it say, 12.8 gram of SO2 reacts with 3.2 gram of O2 to form SO3, so you have this SO2, तो पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, yes or no, Yes, sir. तो पहले मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा, इज इट बैलेंस्ड नाउ, अभी बैलेंस्ड है, सर यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है। हाँ तो बैलेंस नहीं है, तो मुझे बैलेंस करना है, आई होप यू नो हाउ टू बैलेंस, तो मैंने बैलेंस कर दिया, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट, एंड व्हाट दे हैव सर सेड, दे हैव, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस है अभी, दोनों साइड पे देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम्स राइट, यस मैम। तो अब क्या करें, तो इसका 12.8 ग्राम है एंड इसका 3.2 ग्राम है, तो अगर दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन होता है तो पहले क्या करना पड़ता है, इफ देयर आर इंफॉर्मेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स तो पहले क्या करना पड़ेगा, दिस मस्ट बी द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, यस सर। तो पहले आई हैव टू फिगर आउट द लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट, यस और नो, यस सर। तो यस सर। पहले, बट आई कैन नॉट डू यूजिंग मास, तो पहले मास से कहाँ पे लाना पड़ेगा, मोल। मोल्स, तो इसका मोलर मास क्या है 32 प्लस, तो इसका मोलर मास इज 64, ठीक है, तो इसका मोल्स होगा 12.8 बाई 64 दैट इज 0.2 मोल्स, और इसका मोलर मास क्या है ऑक्सीजन का 32, यस सर। तो ये क्या हो गया 0.1 मोल्स, तो दोनों का मोल्स मिल गया, SO2 का 0.2 मोल्स, O2 का 0.1 मोल्स, तो क्या तुम लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर सकते हो अब यूजिंग द ट्रिक, कैसे करना है लिमिटिंग रिएजेंट सर डिसाइड, जीरो सर 0.2/2। राइट, और यहाँ पे 0.1 जीरो बाई 1, पॉइंट वन बाई वन। तो दोनों का तो सेम ही आ रहा है, देयर इज नो स्मॉलर नो लार्जर वैल्यू, राइट, नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नन ऑफ देम आर लिमिटिंग, नन ऑफ देम आर एक्सेस, बोथ ऑफ
them Are will equal. be consumed at the same time. दोनों Yes, sir. खत्म हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, तो तुम किसी के रेस्पेक्ट पे देख सकते हो, तुम ऑक्सीजन या SO3 किसी के भी रेस्पेक्ट पे देख सकते हो. तो लेट अस से SO2 को रेस्पेक्ट पे देखते, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो SO3 कितना मिलेगा, कितना मिला चाहिए, व्हाट इज द मोल्स ऑफ SO3 एक्सपेक्टेड. तो अगर SO2 का मोल्स, अगर इसका x मोल्स मिलता है, तो कैन आई से दैट 0.2/2 should be equal to x/2. Yes, sir. तो फिर इसका भी 0.2 मोल्स आना चाहिए, Yes, sir. which is expected. Yes or no? Yes, sir. तो अगर 0.2 मोल्स एक्सपेक्टेड है, तो इसको तुम मास पे ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मास पे दिया हुआ है SO3 का जो मिला है मुझे, वो मास पे दिया हुआ है. तो इसका मोलार मास क्या है, इसका मोलार मास है 80 ग्राम. तो इसका मतलब अगर 0.2 मोल्स मतलब इसको मास पे ट्रांसफर करोगे, क्या मिलेगा, इट विल बी 16 ग्राम, दैट इज एक्सपेक्टेड. कितना Yes, SO3 sir. आई एम एक्सपेक्टिंग, बट मिला कितना, 16 grams. 16 ग्राम तो एक्सपेक्ट कर रहा है, मिला कितना SO3, SO3 मिला कितना, क्वेश्चन पे देखो. Sir, 6 gram. 6 ग्राम. तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा, जो मिला which is obtained by which is expected into 100. is it clear? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, आज यहाँ पे छोड़ देते. Okay, sir. सो आई थॉट आई वुड डू सम मोर, कुछ रिलेटेड टॉपिक से, जैसे परसेंटेज composition of a mixture having similar chemical behavior. ठीक है, anyway we can finish it here. Next class we'll start from those parts, and also we'll complete stoichiometry. there is a remaining part called eudiometry, वो करना है, and then Okay, we'll sir. move to the concentration terms. Okay. Okay, sir.